So yesterday I have told you about the types of nutrients that our body requires to grow, to keep ourselves fit and healthy. Okay, now today we will learn about balanced diet. First of all, we should know that according to age and physique of a person, different types of persons eat different types of food to eat according to their age and their physique. Like elder persons, your grandfather and grandmother, they need more of vitamins and minerals to eat to protect themselves and fight against diseases. Okay, children need more of proteins to grow more and healthy, and the ones who are doing more of physical activities, the labor work, they need more of carbohydrates to keep themselves healthy and fit, and so that they can work more harder. So now what is a balanced diet? A balanced diet is one that contains all the nutrients like proteins, fats, carbohydrates, vitamins and minerals in the right quantity. So the right quantity of food that our body needs to grow, to keep ourselves fit and healthy, that is known as a balanced diet. It helps us grow strong. It helps us grow strong and healthy. Repairs injured parts of our body. Repairs injured parts of our body. Whenever we get hurt from somewhere, something is broken, like bone is fractured or muscles are damaged, then what do we eat? We eat only types of food only to get them repaired as soon as possible and keeps us healthy. So this is a variety of food only that keeps us healthy and fit. Now to be fit and healthy, what rules do we apply to keep ourselves fit and healthy? Eat a variety of food. We should not stress on one food. Like I like banana. I like to eat banana a lot. But no, eating too much of banana, that will create constipation in your stomach. You know that. You will not be able to go for the then what will happen? That is dangerous for you. So variety of food. Then if you like pakoras too much, if you eat too much of pakoras, what will you eat? You will directly go again, mama pony. You will go again and again and sit and you will have loose motions, right? So you should eat variety of food and the balanced food that you should eat required for your body. Our next point is drink water and milk more. So we should eat and drink too much of. Our next point is we should drink water and milk more of. So we should drink more of water and more of milk, because milk provides calcium to our body. That makes our bones strong, and water helps in dissolving the food in our body. Do not overeat. If I am fond of eating too many chocolates, but we should not eat too many of chocolates, too much of junk food, what will happen? Eating too much means overeating of any of the food can be dangerous for our health. Eating too much can make you feel uncomfortable. You may also gain a lot of weight. So eating too much can make you more fat. So eat limited food and whatever is required in a balanced diet for your body. Spend more time in outdoor activities. Means whenever you eat food, then you should not go and sleep on the bed directly. First you should take a little walk, go out to play. Means you should focus more on outdoor activities, so that whatever you eat is digested properly in your body. Okay, and that can give you more of fat, nutrients, whatever you require. Okay, so that's all. So keep these rules in your mind to keep yourself fit and healthy. Okay. यस बच्चों, हेलो। कल हमने पढ़े थे पोषक तत्वों के बारे में, हम लोग भोजन के विषय में पढ़ रहे हैं। तो कल हमने अलग अलग तरह के पोषक तत्व पढ़े थे, राइट। न्यूट्रिएंट्स जिन्हें हम लोग कहते हैं, जैसे कार्बोहाइड्रेट, प्रोटीन्स, राइट, फैट्स, मिनरल्स, विटामिन्स, राइट। तो आज हम लोग पढ़ेंगे बैलेंस डाइट के बारे में।
तो आपको पता है बैलेंस डाइट क्या होती है? बैलेंस डाइट, बैलेंस डाइट का मतलब होता है संतुलित आहार, यानी कि वो भोजन जिसमें सारे पोषक तत्व एक साथ हों, ठीक है। और सारे पोषक तत्व कौन कौन से पोषक तत्व? कल जो हमने पढ़े थे, जस्ट लाइक प्रोटीन, फैट्स, कार्बोहाइड्रेट, विटामिन्स एंड मिनरल्स। तो ये सारे पोषक तत्व हैं, और वो सारे पोषक तत्व अगर हमें एक भोजन में, यानी जो कुछ भी हम लोग खाते हैं उस खाने में हों, तो वो हमारे लिए बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल होता है। तो इसलिए हम लोग क्या करते हैं, बैलेंस डाइट हमारा भोजन होना चाहिए, यानी कि हमारे खाने के अंदर ये सारे पोषक तत्व होने चाहिए। तो उसे हम लोग संतुलित आहार या फिर बैलेंस डाइट कहते हैं। तो बैलेंस डाइट जब हम लोग खाते हैं तो वो क्या करता है, बैलेंस डाइट हमारे को हेल्प करता है स्ट्रॉन्ग बनने में, ठीक है। हमारी बॉडी के अंदर जो भी टूट फूट हो जाती है, यानी कि कभी कभी मिसहैपनिंग होती है, हाथ टूट गया, पैर टूट गया, कहीं पर चोट आ गई ड्यू टू सम एक्सीडेंट, है ना, कुछ एक्सीडेंट की वजह से, तो हम लोग क्या है, शरीर में बहुत सारी दर्द हो जाता है, अंदर इंटरनल भी कई बार प्रॉब्लम हो जाती है, या फिर इंटरनल डैमेज भी हो जाते हैं, सेल्स डैमेज हो जाते हैं, कट लग जाता है, खून बहता है। तो ये सारी जो कुछ भी हमारे शरीर में हुआ, तो वो सब कैसे ठीक होगा? वो हमारी बैलेंस डाइट की थ्रू होगा, यानी कि जो भी हम भोजन खाते हैं उसके थ्रू हमारे को सारी चीज़ें मिलेंगी और हमारी बॉडी की रिकवर होने लगेगी, बोन्स जुड़ने लगेगी, और उसके द्वारा हम लोग ठीक हो जाएंगे। तो हमारे बैलेंस डाइट यानी संतुलित आहार के अंदर हमारा सारे पोषक तत्व एक सही क्वांटिटी में यानी सही अनुपात में होना चाहिए। अब हम आएंगे रूल्स टू बी फिट एंड हेल्दी। अब वो कौन से रूल है जिससे कि हम अपनी बॉडी को फिट और हेल्दी रख सकते हैं? तो सबसे पहला पॉइंट है ईट ए वैरायटी ऑफ फूड स्पेशली फ्रूट्स एंड वेजिटेबल। सबसे पहला पॉइंट है ईट ए वैरायटी ऑफ फूड। हमें एक ही तरह का भोजन नहीं करना चाहिए। जस्ट लाइक मैम ने बताया कि अगर मुझे बहुत सारा बनाना यानी केला खाना पसंद है, लेकिन अगर मैं बहुत ज़्यादा केला खाऊंगा तो क्या होगा, मुझे कॉन्स्टिपेशन हो जाएगा, कब्ज हो जाएगा, और नेक्स्ट डे मुझे जो मोशन है वो ठीक से नहीं हो पाएगा। तो हमें एक ही तरह का भोजन नहीं खाना चाहिए, या हम डेली एक ही चीज़ खाते रहें, चावल ही चावल खाएं, दाल चावल ही खाएं, दाल चावल खाएं, नहीं हो सकता। सो हमें बहुत अलग अलग तरह के भोजन को खाना चाहिए, और साथ ही स्पेशली हमें फ्रूट्स और वेजिटेबल्स हमारे भोजन में ज़रूर शामिल करना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट, ड्रिंक वाटर एंड मिल्क मोर ऑफन। इट मीन्स क्या, बहुत ज़्यादा हमें जब हम लोग अच्छा भोजन कर रहे हैं तो साथ ही हमें बहुत सारा पानी भी पीना चाहिए। दिन में कम से कम 5 से 7 लीटर, 6 लीटर, हम जितना हमारी बॉडी की ज़रूरत है उतना हमें क्या करना चाहिए, पानी पीना चाहिए। और हमारी बॉडी के अंदर दूध भी हमें जाना चाहिए, यानी कि हम लोग बहुत सारा जितना हो सके, सुबह 1 गिलास दूध, शाम को सोने से पहले 1 गिलास दूध हम पी सकते हैं। और दूध पीना इसलिए भी ज़रूरी है क्योंकि वो हमारी बॉडी है उसके अंदर जो बोन्स हैं उन बोन्स को कैल्शियम देता है, और कैल्शियम की वजह से हमारी बॉडी के जो बोन्स हैं वो मजबूत रहते हैं, हड्डियाँ मजबूत रहती हैं। तो हमें बहुत सारा पानी और साथ में बहुत सारा दूध भी पीना चाहिए। नेक्स्ट पॉइंट है डू नॉट ओवर ईट। डू नॉट ओवर ईट। व्हाट इज मीनिंग ऑफ ओवर ईट? ओवर ईट का मीन्स क्या है, अत्यधिक खाना, यानी कि हम पूरा पेट भर चुके हैं लेकिन फिर भी हम खा रहे हैं, ये होता है ओवर ईटिंग, यानी कि हम बहुत सारा खाना खाते हैं। तो ऐसा नहीं होना चाहिए। ईटिंग टू मच कैन मेक यू फील अनकम्फर्टेबल। ओके, अगर आपने बहुत ज़्यादा खाना खाया तो आपकी बॉडी ही अनकम्फर्टेबल फील होगी, ना तो आप ठीक से चल पाएंगे, बहुत ज़्यादा दुखी हो जाएंगे। तो इससे बेटर है कि हम लोग ठीक से जितनी हमारी रिक्वायरमेंट है उतना ही हमें भोजन करना चाहिए। यू में ऑल्सो गेन ए लॉट ऑफ वेट। अगर आपने ओवर ईटिंग किया, आप ज़्यादा खाते हैं, बहुत ज़्यादा खाते हैं, और फिर फिजिकली कोई भी काम नहीं करते हैं, तो आपका वेट क्या हो जाएगा, बढ़ता चला जाएगा, आप मोटे होते चले जाएंगे, आपकी बॉडी में फैट डिपॉजिट होने लगेगा, और आपका चलना फिरना और बहुत सारी हमारे को कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। सो
हमारा वेट बढ़ जाएगा। इससे बेटर है कि हम लोग कम से कम और बैलेंस डाइट को प्रेफर करें। नेक्स्ट इज द लास्ट, स्पेंड मोर टाइम इन आउटडोर एक्टिविटीज़। ज़्यादा से ज़्यादा हमें जितना भी हम लोग खाते हैं तो हमें उसको बर्न भी करना चाहिए, यानी कि हमें उसका यूज़ भी लेना चाहिए। इसका मतलब ये है कि हम अगर खाना जो भी खाते हैं तो उसके बाद में हमें घूमना चाहिए, वॉकिंग करनी चाहिए, आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी फिज़िकल वर्क ज़रूर करना चाहिए। रात को खाना खाने के बाद हम जितना घूम सकते हैं वो अच्छा है आपकी बॉडी के लिए। तो ज़्यादा से ज़्यादा हमें आउटडोर एक्टिविटीज़ यानी बाहर के काम को करना चाहिए।